Hello students, welcome to the next lecture on the inner product space. Today, one of the most important equations arises in the inner product is parallelogram equations, and you can see that is defined on the norm of the vector. I will also explain you with some examples so that you can easily understand how this parallelogram equation works and how it can be derived. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far related to the concept of the inner product. We have defined the concepts, various examples of the inner product space, definition of the norms, Cauchy-Schwarz inequality and many more lectures in this playlist. ये सब लेक्चर आपको मेरी प्लेलिस्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस में इजिली वे में आपको मिल जाएंगे. फाइन. So you can watch these all videos so that you can understand the concepts of the future lectures very easily. चलिए, as I mentioned you, if you have any inner product space V, the relations is defined in this way is called as the parallelogram equality. Why you call as the equality? Because यहाँ पे equation लिखा हुआ equality है. Fine. और called as the parallelogram equations. प्रूफ इज अ वेरी सिंपल. मैं 2 लाइन में इसका प्रूफ कर दूंगा, बट सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि पैलोग्राम आइडेंटिटी और पैलोग्राम इक्वेशंस कहती क्या है. फाइन. एक पैलोग्राम बना लेते हैं. लेट्स से this is my AB. Fine. These are my side. Then BC. Then it is AD and AC. Fine. So consider this is my parallelogram. Side is my X and Y. अगर ये X है तो पैलोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एंड इट इज माई Y. क्लियर. अब सबसे पहला काम आपका X प्लस वाई इस डायग्राम में होगा क्या. फाइन. सो this value AB is my X, BC is my Y. So by using the triangle law of the vectors, ये आपका क्या हो गया, X plus Y. Fine. Similarly, by using the triangle law of, आपको बनाना है X minus Y, तो Y की डायरेक्शन बदलनी होगी. So that means this value will be, ये क्या हो जाएगा आपका X minus Y. ये तो बनेगा आपका X plus Y and X minus Y. And we all knows in the case of the parallelogram, the AC square, that is a diagonal length, BD square, that is a diagonal length, is equal to AB square, BC square plus CD square plus DA square. तो आप देखो AC की वैल्यू क्या हो गई, X plus Y whole square, norm, length. BD is my X minus Y. What is the AC? Sorry, AB is my X, CD is my X. So it's a norm X square, norm Y square. Make sure students, हमने नॉर्म के लेक्चर में क्या देखा था, नॉर्म ऑफ द एक्स इज बेसिकली डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द वेक्टर एक्स. फाइन. तो इस ए बी की लेंथ क्या होगी, आई कॉल एज ए नॉर्म ऑफ एक्स. फाइन. और इन अदर वर्ड यू कैन से द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द फोर साइड. क्लियर. चलिए प्रूफ करते हैं. इट्स वेरी वेरी सिंपल. 2 लाइन में इसका प्रूफ कर देते हैं. सबसे पहले क्या आपका x प्लस वाई होल स्क्वायर. सो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट लिख लेता हूं. x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई. सो कैन यू ओपन दिस. पहले x के साथ सबको खोल लो. x कोमा x प्लस x कोमा वाई प्लस फिर y के साथ सबको खोल लो. y कोमा x and y comma y. So what is the x and x? Inner product of the x and x is norm of the x, which is same x comma y. Y and x we never know. Fine. And norm of y square. Make sure students, x and y, inner product of the x and y is same as y of x only. कब होगा, जब आपके पास रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा. लेकिन यहां तो V बोला ना, V में भी आर रियल और इट में भी कॉम्प्लेक्स, तो ये हर बार नहीं होगा इक्वालिटी, तो इसको ऐसे ही रहने दो. सिमिलरली आई कैन स्टार्ट विद द सेकेंड टर्म. हाउ यू कैन राइट दैट, x माइनस वाई, x माइनस वाई. फाइन. इसको भी ओपन कर देते हैं. दैट विल बी x कोमा x, पहले x के साथ सबको माइनस x कोमा y, फिर y के साथ y कोमा x एंड देन y कोमा y. तो x एंड x क्या हो गया, नॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर. इसको ऐसा चाहिए रहने दो. फाइन.
वाई ऑफ एक्स को भी एज सच रहने दो, और नॉर्म ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशन बन गई आपके पास। फाइन, अब क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड यू कैन ऐड देम। जैसे ही आप ऐड करोगे माइनस एक्स वाई कैंसल, तो क्या बन गया, ये ट्वाइस ऑफ द एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द पैलोग्राम इक्वेशन। फाइन, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द नॉर्म ऑफ वाई। सो आपको क्या करना है, एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जो y के ऊपर भी हो, x प्लस वाई के ऊपर भी हो, x माइनस वाई पे भी हो। फाइन, सो विच इज दैट, दैट इज कॉल्ड एज द पैलोग्राम इक्वेशन। फाइन, तो आप पैलोग्राम इक्वेशन लगाते हैं और इसके अंदर वैल्यू फिल कर दो। व्हाट इज द x प्लस वाई, 4, सो दैट विल बी 4 स्क्वायर, x माइनस वाई 6 square, twice norm of the x 3 square and norm of the y square. Now you can open this bracket, that will be 16 plus 36 which is equal to twice 9 plus norm of y square. So that will be 52, ये 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, that is my 9 plus norm of y square. तो कितना हो गया, 26 minus 9 is norm of y square. Fine, so y norm of y कितना हो गया, norm is always a positive value, so positive square root of 17 is the right answer of the problem. Clear? This is the first method. Second method क्या है, जैसे हमने थ्योरम को प्रूफ करा है, आप norm of y से स्टार्ट करते हैं। फाइन, x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो इसको जब आप ओपन करोगे दैट विल बी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस नॉर्म ऑफ, तो जिस चीज की वैल्यू मालूम है उसकी फिल कर दो। सिमिलरली नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई से स्टार्ट कर लेते हैं, जिस जिसकी वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूशन कर दो एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ वाई। क्लियर? सो इट्स अ वेरी सिंपल वे हाउ यू कैन प्रूफ द पैलोग्राम equations of the inner product space. We will see the next lecture on the triangular inequality in a very simple manner. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on it. Thanks for the watching.